So when it comes to the legislature, there are some very, very important laws which have been passed last year. There are some important developments which took place, like expulsion of a member from the house, suspension of 140 members in the house. So we need to be aware about some important provisions regarding the legislature. ठीक है? So सबसे पहले आते हैं सस्पेंशन पे. Suspension of MPs in the house. Okay? How, on what basis MPs can be suspended? तो इसके अलग अलग रूल्स हैं. राज्यसभा हैज डिफरेंट रूल्स, लोकसभा हैज डिफरेंट रूल्स. ठीक है? 3 रूल्स हैं जो लोकसभा में यूज होते हैं. रूल नंबर 373, 374 एंड 374A. ठीक है? These are the 3 rules which are used in the Lok Sabha for suspension of MPs. उसी तरह से राज्यसभा में 254 और 255, 255 and 256 है. These 2 rules are used by the Rajya Sabha chairman to suspend MPs. Okay? What is 373? Any member who is disrespecting the chair, if the chair points out and names the person, he shall immediately withdraw from the house. ठीक है? And इसमें सस्पेंशन कितने दिन की होगी? इसमें सस्पेंशन होगी फॉर दैट सिंगल डे. जिस दिन आपको सस्पेंड किया गया अंडर रूल 373, उस दिन आप हाउस में काम नहीं करेंगे. यू विल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द हाउस. यू विल नॉट बी वर्किंग इन दैट हाउस दैट डे. ठीक है? अब वर्किंग पे आपको हमेशा ध्यान रखना है अबाउट सस्पेंशन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन अ एमपी इज सस्पेंडेड, he will have some effect on his salaries and allowances. उनको allowances नहीं मिलेंगे जो हाउस जाने के लिए मिलते हैं. He will not be allowed to present any bill in the house. All the areas, his questions will not be listed in the house. So suspension का effect उनकी functioning पर होगा, but he will not be deprived the right to vote in the house. अगर मान लीजिए हाउस में कोई वोटिंग हो रही है, किसी बिल पर डिस्कशन हो रही है, वहां वोटिंग होना है, a suspended MP will get the right to vote in that discussion. So voting rights छीन कर आप सस्पेंड नहीं कर सकते, because if that happens, then the chairman can very easily influence the composition of the house by suspending the opposition MPs and in the same way in the states also. So that is not permissible. Voting rights रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की जो कमिटीज बनती हैं, there are committees which are formed in the parliament. So when the committees are formed on the basis of election, these suspended MPs will not be eligible to vote in the committee's election, but they will be eligible to vote on discussions and bills in the house. That is something which you need to be very, very clear about. Suspended MPs are not deprived with right to vote in the house. ठीक है? So 373, it will result into 1 day of suspension. ठीक है? आप चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं. स्पीकर कैन डायरेक्ट अ मेंबर टू विड्रॉ इमीडिएटली फॉर द डे. ठीक है? तो ये पावर किसके पास है? अल्टीमेटली स्पीकर के पास है. All 3 rules, who will suspend? It will be the speaker. These are mentioned in the rules of procedure of Lok Sabha. These rules are in the rules of procedure of Rajya Sabha. ठीक है? कई बार रूल्स भी आते हैं न्यूज में. सो आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जानना है, आपको बस जानना है सस्पेंशन और एक्सपल्शन में डिफरेंस क्या है. एक्सपल्शन मींस यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस, यू आर नो मोर अ मेंबर ऑफ द हाउस. ठीक है? हाउस हैज फाउंड यू अनफिट टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस. सो एक्सपल्शन मींस यू आर नो मोर अ मेंबर ऑफ द हाउस. व्हाट हैपेंड विथ मिसेस महुआ मोइत्रा. ओके? बट सस्पेंशन मींस यू आर जस्ट बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस फॉर अ टेम्पररी पीरियड. सो 373 में जो सस्पेंशन होगी वो 1 दिन की होगी. उसी तरह से 255 में जो सस्पेंशन होगी वो 1 डे की होगी. ठीक है? मैक्सिमम 1 डे. सुबह सुबह सस्पेंड हो गए तो पूरे दिन के लिए हो गए, वरना जिस समय से सस्पेंड हुए उस समय से उस दिन तक आप सस्पेंडेड हैं. ओके? 374, इट कैन बी अप टू द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द सेशन. जितने दिन सेशन में बचे होंगे उतने दिन के लिए आप सस्पेंड हो सकते हैं. 256 is also the same. Here suspension will be done by the
chairman up to the remaining period of session. 374A is a little variation. Here, if you see, the chair may name a member who disregards the authority of chair or abuses the rules of council. So, if the chairman is very, very clearly pointing out that this person is disrespecting the chair, the speaker, he may have the power to suspend the person for 5 days continuously or the remaining period of session, whichever is lesser. ठीक है? So, इसमें ग्राउंड क्या लिखा हुआ है? ऑन ग्रॉस और सीवियर वायलेशन ऑफ रूल्स, ठीक है, अप टू 5 consecutive days up to 5 consecutive days or remaining session whichever is less. ठीक है, तो या तो 5 दिन के लिए होगा या रिमेनिंग सेशन अगर 3 दिन का बचा है तो 3 दिन के लिए होगा, जो कम होगा दोनों में से उसके लिए सस्पेंशन होगी. सो ऑन ग्रॉस और सीवियर वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस इट कैन बी डन. अब ये क्या है ग्रॉस वायलेशन? इट विल डिपेंड अपॉन द स्पीकर, दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्पीकर. सो हमें बस याद रखना है कि सस्पेंशन के 3 रूल्स हैं लोकसभा में और ये 2 रूल्स हैं राज्यसभा में, जिसको लेकर किसी भी मेंबर का सस्पेंशन हो सकता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन? इफेक्ट इज नो वोटिंग राइट इन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी. ठीक है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटी में इलेक्शन होगा उसमें वोट नहीं कर सकते हैं. नो पार्टिसिपेशन इन डिस्कशंस एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट. ये हमारे लिए रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए हम याद रख सकते हैं. दीज आर द रेलेवेंट पॉइंट्स वी कैन रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स as far as suspension is concerned. I hope all of you are clear with this. Second point, no participation in discussions, and third point is financial impact. ठीक है, उनके अलाउंसेस कट जाते हैं. जिस दिन सस्पेंड रहेंगे उस दिन के जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं हाउस जाने के लिए वो उनको नहीं मिलेंगे. सो इट विल हैव सम इम्पैक्ट फाइनेंशियली. इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन हिज पार्टिसिपेशन इन द हाउस. उनके नाम से जो बिल प्रपोज थे वो नहीं आएंगे, उनके नाम से जो क्वेश्चंस थे वो नहीं डिस्कस होंगे. ठीक है, सो I hope all of you are clear with this now. Now we are looking at expulsion. Okay.